ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। भरिया हथ पैर तन दे, पानी धोता उतरस खे। मूत पलीती कपड़ हो, दे साबून लिया ओह धो। भरी मत पापा का संग, ओह धुप नावै के रंग। पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जा। आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मी आवो जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कार जो जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालक शब्द सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, जिन्हां दी मुकद्दस गोद अंदर ढलदी शाम गुरु बाबा जी दे पावन दरबार सजे हैं। रोज़ाना की तरह गुरु घर दे सिंह साहब पासों आप जी ने पाठ रहरास साहब का अरदास और हुक्मनामा सरवण किया है। ये जो समा है ये गुरु शब्द विवेचन का है, गुरु शब्द व्याख्या का है। रोज़ाना इस वक्त गुरु शब्द की विचार आप सरवण करते हो। सो आओ जपजी साहिब की अगली पौड़ी की उपदेश गुरु करते हैं। सतगुरु आप कृपा करके वरत के आप सबना सुलझी बख्शिश करन। कुछ कहने की इजाजत देंदे हुए एक बार सब सुना पवित्र करो। वाहे गुरु साहिब सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी कल असी विचारना किया सी। असंख नाम असंख धाम, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह। उस वाहिगुरु की सृष्टि जिहड़ी है बाबा जी कहते मैं उसकी की विचार करा। सारी सृष्टि जिहड़ी है असंखां विच असंख्य ही कर्म करती है। पर हे वाहिगुरु जी
तू सारिਆਂ ਨੂੰ कर्म विधान ਵਿੱਚ लिख के ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ लिख ਦਿੱਤਾ, पर ये तेरे ते लागू नहीं ਹੁੰਦੇ। इसलिए तू ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ परे है, लिखण तो परे है। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਇਆ, ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੀਰਥ ਤੇ, ਫਿਰ ਐ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੰਖ ਤੀਰਥ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਆਰਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਵਿਧ ਦਿੱਤੀ, ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ, ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ, ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੰਖਾਂ ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਭਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਾਇਆ ਵਾਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬਗ ਜਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਕਰ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀ ਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ, ਹੱਥ ਸਾਡੇ, ਪੈਰ ਸਾਡੇ, ਤਨ ਦੇਹੀ ਸਰੀਰ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਖੇਹ। ਇਹ ਖੇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਆ, ਇਹ ਖੇਹ ਨਾਲ ਜੇ ਲਿਬੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਧੋਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧੋਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਆਮ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਐ ਜੜਾ ਜੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਬਰਾਤਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਬੜੇ ਤੁਬੜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ 10-11 ਵਜੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਗਾ, 12-1 ਵਜੇ ਲੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋਵੋ। ਲਿਬੜਿਆ ਤੁਬੜਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਇਆ ਰੇਤਾ ਰੇਤਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਉ ਪਿਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕੇ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਨੁਕਤਾ ਕਹਿਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 68 ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 68 ਬਣਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਉੱਥੇ ਵਸਾਏ ਪਿੰਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੱਟ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੱਟ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਬਹੁਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਕਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਹੈ, ਦਮੋਦਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਰਮਦਾ, ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੀਰਥ। ਈਵਨ ਬਹੁਤੀ ਬੱਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ।
तो साढ़े कोल खजाना सीगा धरती विच पानी साफ। दुबई वर्गा इन्ना मुल्क अमीर हैगा पर उन्होंने कोल पानी अपदा नहीं हैगा। बंदा तेल बिना सार सकदा, पानी बिना नहीं सार सकदा। हुण साडे की साडे पानी की घाण हो रहा, पानी खत्म हो रहा, घटदा जा रहा। अगे 100 फुट ते तुहानूं पता जिहड़े सियाणे बैठे ने भी एक ही करन, 2 कईयां मारनियां, टोआ पटना, थल्ले पानी निकल आउंदा सी। ये समा सीगा। हुण हुण किन्ने किन्ने फुट चला गया पानी, घटदा जा रहा है क्योंकि इसदी वरतों होई जा रही है। जिहड़ा इन्ना प्रकृति ने सानूं वधिया सोर्स दिता सी वो खत्म कर दिता। खत्म दे भी एक बड़े अलग तरीके होने। हुण ये की सी, उदों किल्लत सी। तुसीं देखो भी किन्ना संघर्ष किया गुरु पातशाह ने। हाट लवाए, 6 हाट जिहड़ा छाटा साहब गुरुद्वारा है, बौलियां लवाइयां, सरोवर बनाए सी। काहदे वास्ते? पानी। संगत नूं किल्लत बहुत होंदी सी। हुण जदों साडे कोले होया ते असीं उहदी कदर कोई नहीं करदे। टूटी छड्ड दिंदे आ, पानी चली जांदा, डुੱਗੀ जांदा, असीं कहंदे कोई ना, जाके टीवी मूहरे बह जांदे, पानी दा की नहीं। खास करके इन्हां दिनां दे विच तां कोशिश करा करो, पानी की लोड़ अनुसार है। गड्डियां धोने आ, होर कुछ धोने ना धोवो, थोड़े पानी नाल सर सकदा गा। दे बाल्टी ते बाल्टी, दे बाल्टी नहीं, एवें नहीं चाहिदा क्योंकि कदर है। ये समा सीगा पहला। खैर वो जो स्थान बनया तो महाराज ने कहा संगत दूरों आउंदी है, पहला आओ भाई इशनान करो। दूरों बंदा आया वे लिबड़िया तुबड़िया थकिया तो वह आके इशनान करे, फिर इशनान करे, फिर जाके प्रशादा पानी छके, क्योंकि बंदा भूखा भाना दूरों आया, संगत की सुनेगा जाके। पहला पंगत, फिर संगत, फिर संगत चाहो। ये गुरु ने सिद्धांत दिते सी। खैर होया कि बदल गया रूप। तब बंदे ने सोच लिया भी जो कोई कर्म कर ले, इन्ने पाप कर ले, चलो फिर कितने चली, कितने तीर्थ से जाओ, नहाओ। विशेषता ये रख ली भी खास दिन ते जाना, उन्होंने दिनों के उपर जी जाओ, जाके नहा के आओ। बहुत पुण्य होंदा जी। कई माघ के महीने च बड़ा पुण्य कहते हैं जी, नहाउण का पुण्य होंदा, सवेरे सवेरे नहाउणा। तो गुरु पातशाह कहते भाई जे पानी दे नाल हथ पैर तन दे खे नाल भर जाते हैं, भरीए हथ पैर तन दे, तो की करो पानी धोते उतर सके। एक एग्जाम्पल दी है भी पानी नाल इस तरह धो सकते हो, पानी में धो तो साफ हो जाएगा। फिर जे किते कपड़ा लीड़ा साडा होर मैला हो जाए, मूत पलीती कपड़ होए, जे होर पलीत हो जाए, इन्ना ज़्यादा गंदा हो जाए भी पानी नाल धोत्या भी उसकी बदबू ना जाए, फिर साबुन वरत लो। साबुन शब्द भी बहुत पुराना है, पुर्तगाली शब्द है। साबुन शब्द साडा नहीं है, बहुत पुराना शब्द, उत्थों ही मिर्चा साडे तो पहले टिक्की कहते होंदे सीगे, फिर साबण की टिक्की कहन लग गया। आम करके अगे कहना टिक्की लिया भाई। नहाउण वाली भी टिक्की उही हुंदी सी, कपड़े धोने वाली भी उहदे नहीं, लोग तो नहाई जांदे सी, उहदे धोई जांदे। हुण तो पता ही नहीं कितनियां कहने, क्योंकि समा बदल गया। ये उत्थों शब्द है। महाराज कहते भरीए हथ पैर दन दे, पानी धोते उतर सके, मूत पलीती कपड़ होए। जे कपड़ा इस तरह का हो गया, फिर की करो, दे साबुण, उन्होंने साबुन दवो, उन्होंने साबण लावो, लियो तो धो ला जाएगा। हुण तीजी गल आई, ये भी है, हथ पैर भी मैले होंदे ने, कपड़ा भी मैला हुंदा, धोण दा जरिया बदल दिता। हुण अगली गल साहब ने लिखी है, वो लिखी है साहब कहते दे साबुन लईए वो धोए, ओनू धो लो धोया जाएगा। अगली पंक्ति, भरिया हथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सके, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईए ओ धोए, भरीए मत पापा कै संग। शब्द का जोड़ा वो प्रकरण उवें ही है। इत्थे ऐ नहीं कहा भी भाई पापां दे नाल मत का अर्थ, क्योंकि मत मत आ गई साडी बुद्धि, मत एक मत हुंदा किसी नूं रोकना, विश्राम ही हुंदा ना भी, जिवें कहंदे किसी ने आख्या सी भी रुको मत जाओ, विश्राम इधर लाता भी इत्थे रुको ना जाओ, जे कहता रुको मत जाओ,
फिर की होएगा भी जाना नहीं, इत्थे रहना, रुको। पर इत्थे मत जिहड़ा है ये बुद्धि नूं कहा, क्योंकि पहला हथ पैर कहा, तन देही नूं कहा, फिर कपड़े नूं कहा, तीजा नंबर दिता महाराज कहते जिहड़ी साडी मत है ये भी मैली हुंदी है, ये भी मैली हुंदी है। ये काहदे नाल मैली हुंदी है? हुण जिहड़े पिछे आपां दस के आए सी गुरु पातशाह ने कहते भरी है मत पापां कै संग, जदों ये पापां दे संग भर जाती है, पापां दे संग है, एक पाप दे नहीं, पापां के संग। आप पहले भी जिक्र किया जी, जिहड़ा पाप हुंदा गा पापी को प्यारा हुंदा गा, वो थोड़ी लगता भी पाप करदा है। बंदा करदा सी भी चलो जी आ भी कर लिया, आ भी कर लिया, आ भी कर लिया, धोखा भी कर लिया किसी नाल, किसी दा हक भी मार लिया, किसी दा आ भी कर लिया, फिर वो कहता चलो कोई ना दान पुण्य कर दो। ये पहला मन्निया जाता सी, ये तीर्थां ते काम होने लग गया सी। कहना जी साढ़े तो आ पाप हो गया, की करिए? उन्हें कहना फिर ऐ करो तुसीं आ चीज़ दान कर दो। पहला पाप तो फिर की हो गया वह बदल च दान। तो याद हो पहले 2 दिन पहले गल कही सी भी अगे जाके क्लीयर होगा, ये उत्थे आ पाप बंदा कर लेना, फिर वो उन्होंने मन च सी भी जे आप दान कर लिया बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। गुरमत कहती नहीं एवं नहीं होना, ये नहीं होना है। उस दिन मैं क्या सी ना भी पाप बख्शे तो जा सकते हैं पर बराबर नहीं हो सकते। भी पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ, पिछले बख्शता देगा भी बख्श दो चलो कोई गल नहीं, पर यह नहीं है भी वो बदले में तुम कहो भी जे मैं आ काम कर दिता तो अगे मैं जे आ कर दाँगा तो मैनू फिर छुटकारा हो जाएगा ना। वो तो कर्म है, किसी ने माड़ा काम कर लिया तो किसी ने चंगा कर लिया, वो तो दो ही ने, उन्हें तो मतलब ही नहीं। गुरमत का पाप पुण्य तो परे है, इनू समझण कदे फिर टाइम लगे तो जरूर लावांगा। गुरु पातशाह कहते जिहड़ी पाप बंदा करदा सी उन्हें कहना भी मैं तो बहुत बड़ा पाप हो गया, फिर की करे जी? कहते फलाने तीर्थ ते जाके आओ। इत्थों ही गलती पै गई सी, जिहड़े लोग जाते सी भी इहदी गति कराओ, बड़ा पाप करता रहा, खानी ताही नहीं इहदा छुटकारा हुंदा। फिर वो गति कराउण वास्ते किते भेवे चले जाते सी, किते प्रयाग चले जाना, किते फलाने तीर्थ ते चले जाना। क्यों? उत्थे गति होंदी है, गत होना अगे चले जाएगा, गति करनी इहनूं अगे तोड़ दो, इत्थे रुक जाएगी, वो कराउणा। फिर उत्थे जाते सी, उत्थे गड़बड़ हो जाती सी। भेवे तो हुण भी कहिंदे ने, खूह बणिया होया, वो कहंदे भी देखो जी आप बंदे की गति कराउणी है जी, पता नहीं कि दिखी जाता, कदे ऐ हो साढ़ा तो नुकसान ही हो जाता। वो कहंदे भी अच्छा फिर तुसीं ऐ करो जी आ एक सोने की चीज़ बना लो, ये दे दो। की करनी जी? सानूं थोड़ी देनी, वो खूह छड्ड दो। वो फिर थल्ले बरीक ना जी एक जाली लगी होंदी सी, वो लगी होनी, वो फिर महीने बाद उन्होंने खिंच लैनी। इस करके तो बहुत जिहड़ा धन इकट्ठा हुंदा सी यार, लोगों ने बथेरा कुछ छड़ देना, दान कर दो। वो सोचते भी आ दान करना हुंदा, पाप दान बहुते माफ़ी चाहांगा, बहुते दान इस करके करते हैं भी मैं पाप तो बचिया रहा। दान का करना यदा उधार हो जी, की करो जी आ कर दो जी, एवें कर दो, ये भी हुंदा गा। साडे घर च भी आ गया, गुरमत च भी आ गया है, बड़ा हुंदा है, बहुत कुछ देने लग गए। जिहड़े मंजे बिस्तरियां दा रौला पैंदा हुंदा सी, हुण तां खैर काफ़ी घट गया भी किसी की डैथ होनी जी, मंजा भी देना गा, बिस्तरा भी देना गा, बस्तर भी देने ने, एवें हुंदा ना। मैं कह एक बार कनेडा गया, किसी के पाठ करन, उन्हें बापू चढ़ाई कराया, वो पाठ कराया उन्होंने घर ना, गल चली तो मैनू कहते भाई साहब जी अस कपड़े देने ने। मैं कहा जी थोड़ी इच्छा, हुण आपां कई बारी हुंदा साडी ड्यूटी इहो जी है कि कह भी नहीं आंदा। कहते साडे बापू ना फलाने रंग की पग बन्नदा सी भी असीं तां उही देनी है। मैं कहा भी तो काम औखा हो जाएगा, चल रंग की भी कोई गल नहीं है ना, तो थोड़ा बापू जो कुछ होर खांदा होया फिर की करूँ मैं तो फस गया ना विचाले भी। वो तो उहदे नाल दी पग भी उहदे नाल दी देनी है, वो तो खूंडी च कहता सी मैनू ना किते खूंडी फड़ा दे भी लै। मतलब
किस लेवल ते साडा माइंड खड़ा हुंदा। एडा बड़ा काम करके कदे भी नहीं हुंदा गा भी भाई साहब तुसीं बाणी पढ़ीए साडे घरे 9 दिन आ वस्त्र असीं तुहानूं सत्कार विच दे रहे, ना कि साडे बापू दे मरे दे रहे। ये नहीं कदे कहिंदे। वो तां दिंदे ने भी वो बापू गया उहदे वास्ते देंदे ने। बिस्तरा भी मंजा बिस्तरा जी उहदे वास्ते दित्ता, उहदे वास्ते दित्ता। फिर जिहड़ा बाणी पढ़ के उहदे वास्ते तां मिलिया ही नहीं, उहनूं थोड़ी मिलेगा। तो अगर बापू घेर के खड़ जे रात नूं भी तूं दे के जा मेरे वाला, तो फिर की करूँ, पै गया ना रौला। तां ही फिर उधार नहीं हुंदा। फिर कहंदे ने माफ़ी चाहांगा, एक मत खड़ गई साडी इत्थे, मलीन हो गई। ये सोच सी, बहुत कुछ करते लोग इस तरह का। गुरमत दे विच कई जगह ते घरां च जाण, उन्होंने वो काम करने जिहड़े पहलां पुराने समय च करते सी, उस तरह भी करने। एवें करना जी नहीं उधार ही नहीं होना इदा। तो इस करके जिहड़ी मत है ना, ये मलीन हो जाती सी जदों पाप समझदा सी भी आ पाप हो गया, मेरे तो गुनाह हो गया। मैं उस दिन भी दस्सिया सी पाप ते गुनाह दे विच फर्क की आ। मान लो असीं माड़ा सोचते हैं, ये पाप है। जिस चीज़ का दिखाई ना देवे किसी नूं, माड़ा सुनते हैं, ये पाप है। किसी का माड़ा सोचते मैं तो जी ऐ हो जे, ਇਹਦਾ ऐ हो जे, ये पाप नहीं सारे। गुनाह की है, जो सिर च मारिया कुछ गुनाह हो गया, वो पुलिस फड़ के ले जाएगी। पाप की कोई सज़ा नहीं हैगी। बाहर तुसीं जिन्ने मर्जी पाप कर लो, इस करके कोई देखा भी मैं जी पाप बहुत कीते ने, मैं थाने चलिया। पापां वास्ते कदे भी थाने नहीं जाऊ, गुनाहां वास्ते थाने जाऊ। पापां वास्ते कित्थे जाऊ? तीर्थ ते जाऊ, उत्थे जाके उतरनगे पाप। ये बाणी कहती है इत्थे गड़बड़ पैंदी है, भरीए मत पापां कै संग। जदों मत पापां नाल संग भरी गई, आ देखो फैसला कितना सोहना कीता गा बाबे ने। जदों मत पापां नाल भरेगी, फिर किसी भी चीज़ नाल नहीं धोती जाए। तुसीं जो मर्जी दान कर लो, गुरु नानक साहब कहंदे जिन्ने मर्जी दान कर लो, मत तेरी पाप नाल भरी। ये उन्हां जुगां दे विच सी भाई, ये उन्हां जुगां दा धर्म है भी आ पाप कर दिता, आ एवें कर दिता, फिर की करो, आ दान कर दो। गज दान, भूम दान, इस्त्री, इत्थे तक भी दान होए ने। हाथी दान देने, भूम दान दे देनी, घर दान कर देना, ईवन इस्त्रियां भी दान कर देंदे सी। कादे वास्ते? पाप हो गए जी, दान करो। बाबा रविदास जी की मैं कह शायद तुहाडे नाल गल कीती आ, समा नहीं गया। वो कहंदे एक बार की होया ना, उन्हां दा काम की सीगा, हुण देखो जोड़े बनाउंदे सी, जुत्तियां बनाउंदे सीगे। वो एक बार की होया, चमड़ा लैके जा रहे सीगे ते रस्ते विच गर्मी दा समा सी, रुक गए। तो उधर राजे की सवारी है, राजा उन्हां दा सेवक सीगा। राजा सेवक जी उन्होंने देखा भी मेरे गुरु जी खड़े, समझदार से उतर के आए। कहते भी महाराज तुसी खड़े हो इत्थे, की गल होगी, की प्रॉब्लम होगी? वो कहते भी कुछ नहीं, गर्मी सीगी, चमड़ा लैके आया सीगा ते हुण वेट करदा भी कोई आएगा तो चकाएगा तो मैं चला जावांगा लैके। हुण देखिया राजे ने वाले भी गड़बड़ ना हो जाए, कोई रौला तो पै ही जांदा ना। साडी राजे महाराज की गल एवं चक्की जाती। वो कहने लगे जी कोई गल नहीं, मैं चका देना। उन्हें आले दुआले देखिया भी कोई नहीं वेंदा इत्थे तां, ठीक है जी चका दो, मैं जावां। तो जो ही उन्होंने इस तरह चकाउणा शुरू किया, चमड़ा इत्थे के लैके आए ना, उधरों किसी पंडित जी दो तुरे आउण, ब्राह्मण जी उन्होंने देख लिया, हुण तो चका दिता, चमड़ा चका दिता, राजा अपने राह हो गया, तो बाबा जी अपने जा हो गए। तो वो पंडितां ने जिन्हों ने देख लिया, हो पै गया रौला। बस जदी चले गए कट्ठे होके, राजा तू तो बहुत बड़ा गुनाह, तू भ्रिष्ट हो गया ना, तेरे तो हुण दरबार च आउणा भी माड़ा हो गया। कहता होया कि तू एक सूरदार नूं चमड़ा चकाता, चमड़े नूं तू हत्थ ला लिया, तू तो गरक गया, पाप हो गया तेरे तो। हुण राजे नूं तो पता सी। राजा कहता फिर हुण ऐ दसो भी हल की है? आ गई ना उत्थे गल भी, हल दस दो फिर की है, जे पाप हो गया तो उतर जूगा, हल दस दो भी आप हल कर लें। कहते हाँ ये हो सकता, हल कर देने कोई हल। तो यह है लालच की बिरती, ध्यान दिया जी, इत्थे मत मैली हुंदी है। बाबा जी कहते कोई ना भाई हल हो जाएगा। तो वो जो सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर कहते भी राजा इवें नहीं गल बननी है, फिर तू इंज कर 101 ब्राह्मण सद करे, फिर 101 नूं रोटी खवा। वो कहता कोई गल ही कोई नहीं, तो खवा दें। होर
101 ਨੂੰ तू सोने की एक गऊ देनी आ। जद सारे ब्राह्मण रोटी खा लेन 101 सोने की गऊ बना के वो मूहरे रखनी है, फिर अरदास होएगी, फिर तेरा भला होना, ता पाप उतरना है। ओहो बड़ा काम औखा हो गया ना। वो कहते ठीक है, गल ही कोई। ब्राह्मण इकट्ठे हो गए जी, सब आए बैठ के लाइना ला के लंगर छकाना शुरू। राजे का की सी कमी, सब ने छकाता लंगर। फिर की होया, हुण राजे ने देखिया भी सब लग हथ पैर जिवें अपने भी घरे च जांदे ने, कई छकाउंदे ने प्रशादा। बहुती बारी बेबे नूं खुश कर लेते, बापू नूं छका दिया करो, किसी बजुर्ग नूं छका दिया करो। कदे बाहला ही दिल करे ना, कोई तुरे जांदा होवे ना, जिहड़ा आख के भी भुख लगे बह जा, तैनूं अज रोटी खवाउणी है, हथ धवाओ ओहदी रोटी खवा के देखो। फिर चलो खैर वो ना जी बाबा जी जदों उन्होंने राजे ने सारिਆਂ ਨੂੰ रोटी खवाती, हथ धवाते, फिर एक एक सोने की गऊ उन्होंने अगे रख दी। हुण इदों पहला कि अरदास करते जदों बाबा रविदास जी आ गए। रौला तो यह सी ना भी इन्होंने पाप किया तो गऊआं मिल जाएगियां तो आप चले जावे, पाप उतर जाएगा। तो बाबा रविदास जी कहते ये कित्थों आ गया, गड़बड़ फिर होगी। बाबा जी कहते भी की गल होगी राजा, ब्राह्मणों को सद्या, आपके गुरु नूं तो सद्या ही नहीं, मैनू भी सिखा दे रोटी। कहते भी नहीं, असल में ब्राह्मण कहते नहीं तुसीं साडे नाल नहीं बैठ सकते, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो की हो गया, इन्हें मरिया होया चमड़ा चकाता तैनूं। अच्छा मरिया होया कमड़ा जो कोई चक ले पाप होंदा? कहते बहुत बड़ा पाप लगता है। बाबा जी कहते गल तो थोड़ी सच्ची पक्की गल है। कहते हाँ, वो पक्के कर ले। फिर साहब बाबा जी कहते ठीक है भाई, रोटी खा ली? कहते खा ली। कहते हम आ तुहाडे अगे जिहड़ी गऊआं रखियां ने, ये जिउंदियां ने जां मरियां हुईयां ने सोने दियां? जिहड़ियां गऊआं ने ये जिउंदियां ने कि सोने दी जिहड़ियां ने कि मरियां हुईयां ने? हिलदियां तो है नहीं ये। कहते ये कित्थे थोड़ी जिउंदियां ने। कहते फिर मरियां हुईयां ने ना? कहते हाँ। कहते फिर मरियां हुईयां नूं हथ ना लाओ, तुहाडे पाप हो जाना। मरियां तो चक्कण दा हक मेरा गा, तो मैं किट्ठियां करूँगा। पैगा फिर रौला। हुण जो देखिया भी तो गऊआं चलियां, हो हुण तो काम खराब हो गया। राजा इनू कित्थों बुला लिया? आखिरकार रौला पिया। वो कहते भी महाराज राजा कहन लगे भी महाराज भी छड्डो, गल की है? कहते गल ये कोई नहीं, पाप कोई नहीं हैगा। फिर ये लालच है, मत मैली हुई आ। जिहड़ी पाप हो ही गया, गऊ दिते किवें हो जाएगा, उतर जाएगा। आ तुसीं इन्हां नूं गऊआं दे दो, खुश होकर भज जाना इन्होंने सारे ने, नाले मरियां हुई ने। राजे नूं समझ पै गई। कहते तुसीं मैनूं कह रहे हो भी जे पाप मरे हुए पशु चुकाउणा पाप है, तुसीं ये किवें लै जाओगे चक के? तुसीं भी नहीं ले जा सकते, जाओ बाहर। सब असलीयत की है आ है, ये इत्थों शुरू होया सीगा। पाप कर लो जी, फिर की करना, पुण्य कर देना। आ दान दे दो, आ दान दे दो, आ दान दे दो, आ दान दे दो। दान जिहड़ा है धन दिओ। सानू बाणी ने दान दे के माघ मज्जन संग, बोलो माघ के महीने तो बथेरे दान करते हैं। एक तो हरी मूंगी बहुत आती उदों। माघ मज्जन संग साधुआ, धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुण। इत्थे गड़बड़ हो गई, सबना नूं कर दान। वो तो गल करते सी नाम दी जी दया प्रवान। ये तो जी ते दया करनी है। ये जी की दया की है, इनू नाम च पाउणा, ये जी ते दया, ये इनू दान देना है। हुण ध्यान दो, गल इत्थे घुमणी है सारी सरखी। साहब कहते भरी हुई मत ते काहदे नाल सी? पापां नाल। ते भरीए मत पापां के संग, फिर ओह धुप है। इत्थे लिख देंदे ना भी दान के संग, नहीं लिखिया। इत्थे लिख देंदे कोई होर चीज़ देण नाल, तीर्थ ते जाण नाल, नहीं लिखिया। उपर तीर्थ की गल कीती है, इत्थे लिखिया नहीं। वो कहते जो मत तेरी पाप नाल भर गई ना, चेता रखी भी ना तो कोई दान काम आऊगा, ना कोई तीर्थ काम आएगा, कुछ नहीं काम आना। फिर काहदे नाल धोती जानी है? वो धुप है, बोलो नाम दे रंग नाल उतरनी है। तो नाम का रंग जे नाम होएगा तो चढ़ेगा, तो नाम का रंग चढ़ेगा ना। यही नाम है जिहड़े नाम की पिछे गल की, जेता कीता, कल पढ़िया सी, तेता नाउ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ तेरी मत कलीन होनी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं हो सकती। महाराज कहते प्रभ का सिमरन, बोलो सब ते प्रभ के सिमरन,
प्रभ के सिमरन तृष्णा बूझे, प्रभ के सिमरन सबके सूझे, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन, प्रभ के सिमरन मन की, बोलो प्रभ के सिमरन मन की मल जाए। इतने लिखता ना स्पष्ट, प्रभु दे सिमरन नाल मन की मल जानिए, अमृत नाम रिद माहे समाए। फिर किथे है, प्रभ जी वसै साध की रसना, ये रसना ते बस जाना उन्हें, नानक जन का दासन दसना, ये कहते उपदेश है। मन की मैल एवें उतरनी है। तीर्थ ते जाया नहीं गई, तीर्थ नहावन जाओ, सानू कहा भी सी जाओ जाओ भाई, सानू कहते सिखो जाना तीर्थ जाओ, बाबा जी कहते तेता रखो तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है। अंतर शब्द ज्ञान, महाराज कहते तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ की है, शब्द की विचार है, अंदर तेरे ज्ञान प्रगट हो जाए, यही तीर्थ है। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਾਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਮੰਨਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇਤਾ, ਮਨ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਧਨ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਹੁਣ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਦਾਨ ਜੋ ਕਿ ਦਾਨ ਦਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਆਹ ਹੈ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੈ ਕੇ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ, ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਲੈ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੁੰਨੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪੁੰਨੀ ਤੇ ਪਾਪੀ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਆਖੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ? ਲਿਖ ਲੈ। ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ। ਆ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲਓ, ਖਬਰ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜੀ ਆ? ਬੀਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੇਚੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਆਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਧੀ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਫਰੂਟ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚੇ, ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਖਾਧੇ ਕਿਹਨੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਢਾ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਹੁਣ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਵੱਸ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਓ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੈ ਕੇ ਰੰਗ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ।